कई सालों से इंसान जो है वो बड़ा मोहित रहा है कि हमारे प्लैनेट्स, हमारे ग्रह जो है सूर्य के आसपास कैसे घूमते हैं। पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज भी प्रपोज की गई बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, लाइक गैलीलियो प्रपोज सम हाइपोथेसिस, कोपरनिकस, केपलर, दीज famous scientists proposes some hypothesis, but the Sir Isaac Newton is one of the scientists whose theories proposed many things and he proved that. So today we are going to discuss about chapter Our Universe. This is the last chapter of the physics, Our Universe, and the first topic for today is gravitation. Before discussing the gravitation, let me tell you a scientist name, that is Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton said that any two material in the world or in the universe attract each other, and the force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between these two masses. This theory is proposed by Sir Isaac Newton. Now, the first, he said that Sir Isaac Newton discovered that, who discovered? Sir Isaac Newton discovered that any two materials in the universe attract each other. With a force. इन्होंने क्या कहा था, कोई भी दो मटेरियल्स जो है यूनिवर्स के अंदर, वो हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन. उस फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन कहा जाता है. नाउ, force of gravitation, this force of gravitation is responsible for the movement of planets around the sun. ठीक है, और this force of gravitation is responsible for motion of heavenly bodies as well as certain other natural phenomena like tides, cyclone, wind. This is due to the force of gravitation. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह जो है उसमें बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना भी अकर होते हैं, एंड जो प्लैनेट्स हमारे मूवमेंट कर रहे हैं सन के अराउंड, दैट इज आल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अब डिस्कस करते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, which I previously write on the board, that is any two material in the universe attract each other with a force, and that force means gravitation force जो हमने पहले डिस्कस किया था, that is directly proportional to the, this is the proportionality sign, gravitation force is directly proportional to the product of two bodies masses, and gravitational force is also inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. Square of the distance between the two bodies means directly proportional का मतलब है कि if the mass of the body is increased, then gravitational force is increased.
if mass of the body is decreased, then gravitational force is decreased. Now, inversely proportional means if the distance between the two bodies is increased, अगर दो bodies के बीच में distance को increase किया जाए तो क्या होगा, gravitational force जो है वो क्या होगा, decrease होगा. Means if you increase the one quantity then another quantity is decreased, that is known as inversely proportional, which we discussed earlier in the maths class also. But another thing is अगर distance जो है उसको हम कम करते हैं दो bodies के बीच में तो gravitational force जो है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरली जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, F से डिनोट किया जाता है. बट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू बॉडीज. लेट वन बॉडी इज हैविंग द मास कैपिटल M एंड अनदर बॉडी इज हैविंग द मास स्मॉल m. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज इज r. देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of two masses, यानी कि this F is directly proportional to m multiplied by small m, and this F is inversely proportional to distance square of the distance. Distance is r, so square of the distance is 1 by r square. So it means the formula of F comes out to be capital M multiplied by small m divided by r square. If you remove this proportionality constant, then you have to put some constant in the equation. That is equal to G. G is equal to M multiplied by M. This is R. This G is known as gravitational constant. This G is known as gravitational constant. ठीक है, इस G को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. This gravitational constant is a universal constant. Universal constant. इसको ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है, अब क्या है, ये जो G की वैल्यू हमने यहां लिखी है, दैट G जो हमने यहां लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट है किसका, जो दो बॉडीज के बीच में मास फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दो बॉडीज का क्या मास है, दैट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द G. वो G की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता. तो इट मींस वी कैन से G इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस किसके इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट वन इज द बॉडी मास. ठीक है, सेकेंड वन इज द मीडियम इन विच द बॉडीज आर कैप्ड. Medium in which the bodies are kept. Third one is the external factors. External factors means it is also independent of heat, pressure, electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है, दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंडिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का भी इंडिपेंडेंट है. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज, ये क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट. नाउ इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, if there are two bodies, let one body is having 10 kg mass and another body is having 1 kg mass. ठीक है, और एक और ये M1 की बात करते हैं, ये M2 की बात करते हैं, फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी. नाउ इफ देयर आर अनदर टू बॉडीज, वन इज M3 and one is M4, then in that particular case the bodies is having 1 kg mass and this are having 0.5 kg mass. Then obvious that mass of these two bodies are greater. ठीक है, इन दो बॉडीज का मास जो है वो क्या है, ज्यादा है as compared to this. So the gravitational force is more in this case as comparison to this. This is all about the law of gravitation. But if this G, universal constant or gravitational constant, we have write in this formula, so it means this is having the some constant value. It is also having some constant value. Now
if we are talking about the constant value g, then this in the standard SI form, this g is having the value, formula क्या था, f is equal to g m multiply by small m multiply by r square. ठीक है, अब ये जो g है ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 6.67 into 10 raised to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. That you can say acceleration, that is known as acceleration due to gravity, and this acceleration due to gravity is denoted by small g. ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, एंड इट्स वैल्यू इज वेरिंग, इट इज मिनिमम at equator. Minimum at equator means it is having the value that is 9.781. अब ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट पोल्स, दैट इज 9.831 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी कहां पर, पोल पर, जो मैक्सिमम है. इक्वेटर पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 9.781. जनरली जी वैल्यू इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में अगर हम इसकी बात करें तो जी की वैल्यू जो जनरली रखी जाती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो जनरल जो जी की वैल्यू लिखी जाती है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 1 डेसिमल, क्योंकि इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9.8 ही आएगा. ठीक है, राउंड ऑफ भी मैं आपको ऑलरेडी मैथ्स की क्लास में बता चुकी हूँ. अब बात करते हैं कि हमारी हेवनली बॉडीज या प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स सन जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, अब सन की जो ये फोर्स ग्रेविटी की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, दिस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, और यू कैन से जी वैल्यू इज maximum at sun and G value is minimum at Pluto. ठीक है, अब मैक्सिमम का मतलब क्या है कि G की वैल्यू सन पर कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, जी की वैल्यू सन पर है 274.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, जो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, अब मिनिमम की वैल्यू की बात करते हैं प्लूटो पर, तो प्लूटो पर इसकी वैल्यू है 0.610 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड अर्थ पर अभी हमने बात की तो अर्थ पर इस जी की वैल्यू तो जो होती है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट मून पे अगर बात करें तो मून पर इस जी की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/6 वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ. मींस अर्थ पर जो वैल्यू है जी की दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी 1/6 होती है मून पर. इसीलिए कभी आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में देखा हो, एस्ट्रोनॉट्स जो मून पर जाते हैं वो वहां पर वॉक नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वहां पर आपको फ्लाई करते हुए दिखेंगे, उड़ते हुए दिखेंगे जब वो चलते हैं. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जी वैल्यू, क्योंकि अर्थ पर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स व्हाई अर्थ इज एबल टू होल्ड द पर्सन. अर्थ जो है वो क्या कर सकती है, आप अर्थ के ऊपर आसानी से वॉक कर सकते हो. अब मून पर ये जो जी की वैल्यू है वो क्या है, 1/6 है, अर्थ की भी 1/6 है.
ठीक है, तो इसीलिए वहां पर जो लोग जाते हैं, जो साइंटिस्ट जाते हैं या एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, वो वहां पर चल नहीं पाते। दिस इज द वैल्यू ऑफ g. Now if I am talking about this g value is dependent on, now there is one more term that is weight of a body. अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, उसमें क्या इंक्लूड किया था, मास इंक्लूड किया था। सो व्हाट इज द वेट, वेट क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction exerted by the earth on the body. वेट ऑफ अ बॉडी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ जो है एक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है। इट मीन्स दैट वेट ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू जी, W. Weight of body is denoted by W. That is related to G, and we know that यहां डेफिनेशन में क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। अब दिस एक्सेलरेशन इज exerted by the earth, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो W वेट ऑफ द बॉडी इज रिटन एज मास m मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं। अब बात आती है कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये ग्रेविटी g जो है वो कैसे हुए निकलेगा। आप दो बॉडीज मैंने ले लिया, एक मैंने लिया लाइट पेपर ले लिया कोई भी, और दूसरा मैंने स्टोन ले लिया। ठीक है, दोनों को जब मैं हाइट से छोड़ूंगी तो विच ऑफ द थिंग रीचेज द अर्थ फास्ट, ऑब्वियस सी बात है, स्टोन जो है वो हमारा अर्थ के पास में पहले पहुंचेगा। ठीक है, बट स्टोन जो है वो अर्थ, देखो दो चीजें मैंने एक हाइट से थ्रो की और टुवर्ड्स द अर्थ, वन इज द पेपर एंड अनदर वन इज द स्टोन। ऑब्वियस रिजल्ट है कि अर्थ को पहले किसने टच किया, स्टोन ने टच किया। क्यों टच किया, डू यू नो द रीजन, नहीं पता, मैं बताती हूं। अब इसका रीजन क्या है कि स्टोन जो है उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो एयर जो है वो उसको रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगी, तो इट मीन्स स्टोन इज एबल टू फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ। स्टोन जो है वो फ्रीली क्या है, अर्थ के ऊपर फॉल होगा, उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हुआ। बट पेपर जो है वो क्या है, बहुत ही लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड है तो एयर जो है, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, वो क्या करती है, वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एयर हर किसी को ऑफर करती है। बट एक वेट ज्यादा होने की वजह से उसको रेजिस्टेंस जो है उसके लिए वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। बट पेपर जो है दैट इज इटसेल्फ ए लाइट वेटेड मटेरियल, वो लाइट वेटेड मटेरियल है, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा है एयर का रेजिस्टेंस, तो पेपर जो है वो फ्रीली फॉल नहीं करेगा एंड इट विल टेक टाइम टू रीच द अर्थ, और अर्थ तक पहुंचने में उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। That's why we can say that paper is not able to fall freely on the earth. पेपर जो है वो फ्रीली जो है वो फॉल नहीं होगा। Air is resisting some resistance, air is providing some resistance to the paper. So अब गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉज प्रपोज किए थे, किसके लिए, फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज। अभी मैंने बता दिया कि फ्रीली फॉल बॉडीज जो हैं, या फ्रीली जो बॉडीज, कौन सी बॉडीज फॉल होती हैं, फ्रीली फॉल बॉडीज के लिए गैलीलियो ने कुछ लॉज प्रपोज किए थे। द वेरी फर्स्ट लॉ दैट ही इज प्रपोज्ड इज दे ऑल
fall with equal rapidity in vacuum. ठीक है, जो भी फ्रीली फॉल बॉडीज हैं वो वैक्यूम में क्या करेंगे, फ्रीली एक ही स्पीड के साथ फॉल करेंगे। अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया। जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया ना, सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एयर, एक ग्लास ले लिया या एक रूम लिया, उसमें से एयर को रिमूव कर दिया। एयर को रिमूव करने के बाद वहां पर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद में जब वहां पर क्या किया गया, एक स्टोन को और एक पेपर को थ्रो किया गया, बोथ रिचेज द ग्राउंड लेवल एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों क्या हुए, ग्राउंड लेवल पे सेम टाइम पर रीच हुए, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। वहां पर एयर प्रेजेंट ही नहीं थी, एयर प्रेजेंट नहीं थी तो दैट मीन्स इट इज अ वैक्यूम। वो क्या था, वैक्यूम था। और वैक्यूम होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी फ्रीली फॉल बॉडीज है, फ्रीली फॉल बॉडी है, उसका मास जो है वो मैटर नहीं करता, वो सेम रैपिडिटी के साथ यानी सेम स्पीड के साथ जो है वो क्या करेंगी, फॉल करेंगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट इज प्रपोज्ड बाय द गैलीलियो फॉर द फ्रीली फॉल बॉडीज। नेक्स्ट थिंग, से एज अ बॉडी फॉल्स, as a body falls, velocity, अब बॉडी जो फॉल होगी तो क्या होगी, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। सो दैट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट is directly proportional to the टाइम। कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है उसकी स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि उसने कितना टाइम लिया है फॉल होने में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस traveled is directly proportional to square of the time, square of the time। कितना डिस्टेंस वो बॉडी जो है वो ले रही है, कितना, the distance travel is directly proportional to square of the time। जितना डिस्टेंस वो बॉडी कवर कर रही है that is directly proportional to the square of the time। These laws are proposed by the Galileo। Now the next term is escape velocity। Escape velocity is defined as the minimum velocity which a body must acquire so that it escapes earth ग्रेविटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एक बॉडी को, मिनिमम वेलोसिटी है दैट अ बॉडी शुड एक्वायर। वो उस बॉडी, जैसे हम रॉकेट को भेजते हैं, रॉकेट जो है वो अर्थ के फोर्स या अर्थ की ग्रेविटी से बाहर कैसे निकल पाए, तो उसके लिए उसको एस्केप मतलब बाहर निकलना।
अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो एक बॉडी को चाहिए, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एंड फॉर द अर्थ दिस एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.27 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थ के लिए ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए ये क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी है 11.27 किलोमीटर पर सेकेंड। मींस अगर एक रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.27 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा सकता है। एंड दैट मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। उसको क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट कम्स इज मून्स ग्रेविटेशन। मून्स ग्रेविटेशन का मून्स ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटी जो है उसका 1/6 है मून की ग्रेविटेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म, दैट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, कि मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर नहीं है तो इट मीन्स एस्केप वेलोसिटी on the moon is very small due to its small mass। अब अर्थ का मास जो है वो सन के मास से ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो भी ज्यादा है। और मून का मास अर्थ के मास से कम है और वहां पर कोई एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट नहीं है रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी जो है वो मून पर क्या है? बहुत कम है एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में वो क्या है? बहुत कम है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द one question or one numerical. So the numerical is, now the question is, if a planet mass is 3 times and its radius is half that of the earth, let me is the mass of the earth, ठीक है, and re is the radius of the अर्थ। अब वो कह रहा है कि कोई प्लैनेट है, उसका मास mp इज द मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, जो जिस भी प्लैनेट की वो बात कर रहा है उसका हमने मास क्या ले लिया? mp। एंड देन दिस मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ me। Now if I am talking about the radius of the planet, this is the rp is the radius of the planet। ठीक है, वो उसने क्वेश्चन में क्या कहा? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, इट मींस 0.4 टाइम्स ऑफ re। दिस ही द क्वेश्चन said up to the first line। Now then find the escape velocity of the planet। अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली बता दी कि क्या होती है, 11.27 किलोमीटर पर सेकेंड, बट उसको निकाला है तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा। अब एस्केप वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से। अगर हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इट मींस, देखो कैपिटल V नहीं है, दिस इज द स्मॉल v विद सब्सक्रिप्ट e। वो कैपिटल मैंने आपको लग रहा होगा वो मैंने कैपिटल लिखा है, बट वो नहीं है था। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, दिस v इज द
escape velocity of earth. इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. अब बात करते हैं, हमें क्या निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट निकालनी है, वीपी. सो वीपी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जी, यहां पर आ जाएगा एमपी, यहां मल्टी आ जाएगा आपका आरपी. आरपी और एमपी का रिलेशन जो है वो आपको एमई की फॉर्म में दे रखा है. तो इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ जी, एमपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एमई एंड आरपी इज 0.5 टाइम्स ऑफ आरई. ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.5. इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3 टू द 6 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.12, सॉरी 12 आ जाएगा. 12 जी मल्टीप्लाई बाय एम ए, दिस डिवाइडेड बाय आर ई. अब इसकी वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू 11.27 किलोमीटर पर सेकेंड ये होती है. सो फ्रॉम हियर Vp can be written as square times of 6 and this 2 GME RE and this 2 of GME RE is equal to escape velocity of the earth. So this is under root of 6 multiplied by 11.27. ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 6 निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे दिस 9 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 6, दिस कम्स आउट टू बी 3.5. ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट आएगा 3.5. ये मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, इसके लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो जो है, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है, 6 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, 6 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इस तरीके का नंबर जब आपको दिया हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसको आप कैसे फटाफट निकाल सकते हैं, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, वो आपको यूट्यूब चैनल ऑफ हरी साइंस एंड मैथ्स अकेडमी पे मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं. सो दिस इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11.27. सो अप्रोक्सीमेटली आंसर कम्स आउट टू बी 39.0. सो एस्केप वेलोसिटी इस केस में जो आएगी दैट इज 39.02 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी आएगी. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. प्लीज गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन and try to solve more questions on that. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.